जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 548th episode of live analysis. So today being Sunday, we will do the weekly analysis of global markets, Nifty Banknifty, stocks, commodities, Forex and cryptocurrencies. So wish you all a very happy Ram Navami. And before I start today's session, let me just remind everybody that next training is scheduled on April 16th and 17th, which is the next weekend. So, anybody who is interested, you can WhatsApp on our number given in the description box and you can register for this training. And once you register, you will be added in our Telegram group, the students' Telegram group, for a period of 3 months. And guys, do like, share, subscribe to our channel, and let us start today's session. So on Friday, equity markets were bullish. Even Nifty and Bank Nifty had bounced pretty much from a expected level. I had given long call on Nifty. On also on Thursday's session, I had explained why we should be bullish on Nifty and Bank Nifty for Friday's session. And on Friday, we saw both the indices bouncing back. So, as of now, from a globally perspective, let us see how the US markets are positioned. So, US markets have started the downtrend, and they took resistance near the 4650 area, which is this. And we had spoken about this as a resistance for the Dow Jones and the S&P 500, and we have seen first round of decline coming into the US market. So overall, I'm bearish on the US market. Even if we get a counter rally little higher, then also I think it will be a completely sell on rise market, and I think this downtrend should continue for some more weeks, and we should hit this level of 4280 on the S&P 500. So there may be a pullback. It may come or may not come, but even if a pullback comes, it will be a sell on rise, and I expect the US market to ultimately fall till 4280 levels from the highs of 4650. So I'm bearish on US equity market. Nasdaq की बात करें तो Nasdaq जो है ये खुद एक काफ़ी बेरिश ग्रिप में है. फ्राइडे के दिन भी Nasdaq was down by 1.5%, whereas S&P 500 was almost flattish. तो Nasdaq में जो है टेक कंपनीज में अभी भी प्रेशर है. And recently the bounce back rally that we had got, it was a fantastic rally, but again at a very expected resistance level. And ये बहुत ही obvious एक resistance था on many technical front. This was the median line, the pitchfork resistance, and it is exactly from this level that Nasdaq has fallen. अगर बाकी इक्विटी मार्केट्स की बात करें, डैक्स, जर्मन कैक एंड फ्रेंच सॉरी दी यूके फुटसी, ऑल दीज मार्केट्स दे हैव बाउंस्ड बैक, but they are all in a bear market territory. Now let us talk about the US डॉलर. सो US डॉलर ने एक थोड़ा सा सरप्राइज यहाँ पे दिया था फ्राइडे को. US डॉलर हैज briefly broken out of that resistance level that I had spoken. So my view was that US dollar should move up, but overall I'm not expecting it to cross this, and neither I'm expecting it to fall below this. However, US dollar on Friday had rallied, and it has broken from this resistance zone. But on the weekly chart, if I look at the US dollar on a weekly chart, it is still very much within the resistance territory. So I don't think US dollar, I will stick with the same view on US dollar. I don't think US dollar is going to come out of this red pitchfork on a weekly chart. So overall it may be slowly trade somewhere like this, and upon hitting the price and time resistance in next couple of weeks, I think US dollar should start to ease off. US dollar should start to fall. Now, if suppose US dollar doesn't fall, if suppose US dollar is looking as if it can stage a rally in the coming weeks, then that would bring some trouble for the uh, emerging market equities especially, and that will definitely be a problem for the our equity markets, especially for Nifty and Bank Nifty, राइट. सो यूएस डॉलर अब बहुत ही क्रूशल पोजीशन पे है, और यूएस डॉलर को जो है हमें वॉच करना पड़ेगा डेली बेसिस पे. इसके दो पहलू हैं.
दूसरा पहलू ये है कि द बॉन्ड यील्ड्स, द ग्लोबल यील्ड्स, दे आर राइजिंग, एंड इंडियन यील्ड्स जो हैं ये भी 7.5 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं. 7 इज जनरली द थ्रेशोल्ड, क्योंकि ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन देखा जाए तो 5, 6, 7 के ब्रैकेट में होता है. फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी लगभग 5, 6 के स्लैब में होते हैं. सो दैट 7 is sort of a psychological level which is widely watched by bond traders. So इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इक्विटी मार्केट में, बिकॉज इसको हमें ऐसे लेना चाहिए कि सपोज योर फिक्स डिपॉजिट इज गिविंग से 5%, यील्ड्स आर गिविंग 7%. तो जो बैंक हैं, बैंक को यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ 7% मिल रहा है, राइट. सो बैंक्स जो है वो चेज करती हैं यील्ड्स को, and that creates a liquidity problem in the financial system. So हालांकि ये इतना डायरेक्ट कोरिलेशन इस तरीके से नहीं होता है, things don't work in a very linear manner in the financial market, but there is always a underlying risk, and that risk coupled with the rise in US dollar can create some problem, can create some turbulence. I would not say a problem, because I think these things will be short lived. ये बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कि टाइम वाइज ये सस्टेन करेंगे. सो आई वुड से इट विल क्रिएट अ टर्ब्यूलेंस इन द मार्केट. अब टर्ब्यूलेंस का मतलब है कि वॉलेटिलिटी हो जाएगी इसके वजह से, ठीक है, रैंडम मूवमेंट होने लगेंगे, एंड टर्ब्यूलेंस जो होता है रियल सेंस में वो चीज़ हमें एक्सपीरियंस करने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है. सो यूएस डॉलर को वॉच करेंगे, इसका इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर पे भी पड़ेगा, और हमने देखा कि फ्राइडे के दिन यूएसडी आईएनआर it has closed above that 76 level, and that is something which is good from a forex futures perspective, because we are trying to be on the long side of USD INR, euro, GBP and JPY, and at the same time we are neutral to optimistic on the nifty and bank nifty. सो हमारे लिए फॉरेक्स की पोजीशनिंग के हिसाब से यूएसडी आईएनआर जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है, बट इस वीक में बहुत ही क्रूशियल वीक है ये, ओके. एक तो दो रीजन है. पहला तो एक तो इट्स अ ट्रंकेटेड वीक, सो वी हैव हार्डली 3 days, and then we have a long weekend, correct. So that will again be a sort of a problematic area है वो, क्योंकि उस समय हम कहाँ पे क्लोज करते हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा. सो दिस वीक इज नॉट गोइंग टू बी इजी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूरो और ब्रिटिश पाउंड, तो यूरो जो है इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, बट स्टिल इट इज थ्रेटनिंग द प्रीवियस बॉटम. ओवरऑल आई थिंक इट शुड बाउंस. ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो इसने फ्राइडे इंट्राडे के दिन जो है एक सपोर्ट ब्रेक किया है, बट देयर वाज अ गुड बाउंस. नेवरदलेस इट हैज मेड अ न्यू लो. ओवरऑल आई थिंक इट शुड आल्सो सस्टेन एंड इट शुड आल्सो कम बैक. ब्रिटिश पाउंड जो है अब अगर फ्राइडे हाई के ऊपर एक बार अगर आ गया, तो then I think it is going to go very very strongly on the higher side. और USD JPY I think it is reaching a saturation point. USD JPY जो है डॉलर येन जो है I think it is reaching a saturation point. इंट्राडे जो फ्राइडे की एक्टिविटी है उसमें सेलिंग मुझे दिखाई दे रहा है. सो ओवरऑल आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट एट अ सैचुरेटेड लेवल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एनएससी फॉरेक्स फ्यूचर्स में क्या लेवल्स होंगे, क्या व्यू होगा. सो फर्स्ट जो पेयर है दैट इज यूएसडी आईएनआर. सो वी आर बुलिश ऑन यूएसडी आईएनआर, और लास्ट वीक मैंने आपको 75.25 का एक बॉटम फिशिंग लेवल बताया था. यहाँ से 76.25 ये एक मूव जो है बहुत ही शार्प तरीके से ये एक मूव हो चुका है. ओवरऑल स्टिल आई एम बुलिश ऑन यूएसडी आईएनआर with the same 75.25 से लेके 75.5. दिस इज अ वेरी नाइस बाइंग जोन फॉर यूएसडी आईएनआर फॉर टारगेट्स ऑफ 76.25 से लेके लगभग 77 के स्लैब तक, ठीक है. सो यही व्यू मेंटेन रहेगा मेरा यूएसडी आईएनआर पे, दैट बाय ऑन डिप्स. एंड सेकंड जो पेयर है वो है यूरो आईएनआर. सो यूरो आईएनआर आई फील it has made a panic bottom at 82.5. So 82.5 I think it's a very good level for long, and immediately में ये 84 में देख रहा हूँ. थर्ड जो पेयर है वो है जीबीपी आईएनआर. सो जीबीपी आईएनआर पे भी जो सेम व्यू है मेरा कि 99 is a very good level, and I think from 99 to easily we should expect 101. एंड फोर्थ इज योर यूएस जेपीवाई आईएनआर. सो जेपीवाई आईएनआर में जो लास्ट वीक लेवल्स थे 61.20, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड लेवल. इट शुड होल्ड फॉर 63.20. ओके. नाउ ओवरऑल जो करेंसीज की ट्रेंड है वो ऐसी ही है. दे आर ऑल यू नो आई एम प्लेइंग फॉर द बुलिश साइड ऑन ऑल द पेयर्स. अगर प्रेफरेंस की मैं बात करूं तो लास्ट वीक यूएसडी आईएनआर सबसे बेटर स्क्रिप्ट था लॉन्ग के लिए.
so that has already been worked out. I think फ्रेश केस में अगर मैं देखूं तो कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थ्री करेंसी पेयर्स दे आर सिटिंग एट अ मेजर सपोर्ट्स, बट दे आर नॉट बाउंसिंग ऑफ. सो अगर बाउंस हुआ तो सब के सब भागेंगे, नहीं हुआ तो सब के सब जो है स्लगिश रहेंगे. सो कोई मैं रेटिंग नहीं दूंगा इस वीक में, और इस वीक सिर्फ 3 दिन है तो रेटिंग में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सभी लगभग एक ही स्तर के हैं. सो दैट्स अबाउट द करेंसी मार्केट्स फॉर नेक्स्ट कमिंग 3 days. ओके, क्रूशल कुछ लेवल्स बताता हूँ. जैसे जेपीवाई आईएनआर जिस दिन 63.2 क्रॉस कर लेगा, इट विल बी लाइक ह्यूज बॉटम इन प्लेस. जीबीपी आईएनआर 101 के ऊपर ट्रेड करेगा तो इट विल हैव पुट अप अ ह्यूज बॉटम इन प्लेस. तो ये दोनों का ये लेवल्स जो है बहुत ही क्रूशल है. ठीक है, नाउ let us talk about the commodity market, which is your WTI crude and all these things. So you जो crude oil है MCX 73-78 पे close हुआ है. And crude, what it has done is it has given a breakdown, but on Friday it has taken a support. So crude में this was the support level, right? And it broke on Thursday, and on Friday it has made a inside bar. Now this is a very interesting case because over here, if from Monday we open gap up, if we get a bullish breakout of this inside bar, so this will be a very fantastic long setup because one, we had a support here, right, which got broken down, but it couldn't sustain, it consolidated, bounced back. So this becomes a failure on the lower side. So this will be a very bullish setup. So I'll become very bullish on crude oil, and then I will buy crude for targets of your 8,000 and 8,500 levels thereabout. So क्रूड में हमें कल का दिन वॉच करना होगा बिकॉज टुमारो इफ वी get a good gap up above 7400, I think it's a buy on dip opportunity because that will trigger the the inside bar breakout which I explained just now. These are the setups, these are the logic that we discuss in the price action training that is going to be conducted next week. So I will be bullish. So 74 के ऊपर जो है हम इसे बाय करेंगे, एंड स्टॉप लॉस हम रख देंगे 72 के जस्ट नीचे, जो भी ये बॉटम बनाए मे बी 72 और 7150. एंड ओवरऑल द टारगेट्स विल बी 8000 एंड 8400 देयर अबाउट्स. जो फाइनल ट्रेड्स होंगे ये ग्रुप मेंबर्स के साथ में शेयर करूंगा. दिस इज जस्ट द व्यू दैट आई एम गिविंग, राइट. सो इस चीज का हम ध्यान देंगे. एक बार WTI क्रूड की बात करेंगे तो WTI crude has just managed to close under 98 level, 97.76 पे क्लोज किया है. सो WTI crude जो है it has actually defended. Now this is a very nice setup wherein if you see the Wednesday's bottom is matched on Friday. Wednesday को इन्वेंट्री आई थी और एक बड़ी गिरावट हुई थी. थर्सडे के दिन इसने पंक्चर किया इस लेवल को, इन्वेंट्री को, और फ्राइडे को इस पे इसने सपोर्ट किया. सो दिस the left hand side has become very beautiful support on the right hand side. So I like this structure. This is a very nice structure. Now what we need is some sort of bullishness to come. Okay, so once we clear this area, this resistance and all, then I think crude has a very great chance to stage one more round of a rally towards $118. लास्ट वीक मैंने आपको WTI के टर्म्स में यही बताया था कि $92 का लेवल है जो मैं देख रहा हूँ, और 96 के आसपास हमें बाय करना चाहिए, और अपसाइड $108 तक ओपन है. करेक्ट. सो स्टिल 92 वाज प्रोटेक्टेड, 92 वाज वेरी इजीली प्रोटेक्टेड. ओके, वॉलिटिलिटी थी बट 92 वाज प्रोटेक्टेड. सो अभी तक ये व्यू, बुलिश व्यू जो है ना, अभी तक इट इज नॉट आउट ऑफ द पिक्चर. नाउ फॉर कमिंग वीक वी हैव टू कीप इन माइंड वन important piece of information, that crude oil, the WTI and the MCX, they have both sustained above the 65-day moving average since last December. So from this, they have defended the 65-day moving average, right? And we are sitting at the 65-day moving average. So we don't want to see crude breaking fresh again, क्योंकि अब अगर ये लास्ट वीक के बॉटम को ब्रेक करता है, देन आई थिंक क्रूड विल बी अंडर बेरिश प्रेशर, एंड आई थिंक that would confirm that we have a top in place in crude oil from a mid-term, short-term, and long-term perspective. So crude has already made one lower high. So structurally, this is like 1, 2, 3,
and this should not be broken. With a lower high in place, we should not break the recent price pivot, because if we do this, then it's a change in trend. Okay, also we have sort of taken out the trend line. If you consider this as a trend line, we have sort of broken the very crucial trend line also. So let us see what happens. अभी तक तो मुझे लगता है कि ये मेंटेन रहेगा. I think it is going to maintain that $92 and $108 इसी रेंज में क्रूड ऑयल जो है ट्रेड करेगा. नेक्स्ट जो कमोडिटी है वो है नेचुरल गैस, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था लास्ट वीक में. एंड नेचुरल गैस हैज ऑलमोस्ट हिट द 500 लेवल, जो कि हमारा एक ऑलमोस्ट लास्ट टू लास्ट टारगेट है. एक्चुअल टारगेट है 515 के आसपास, बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ. इट हैज मेड अ न्यू हाई, सो माय जॉब इज डन. नेचुरल गैस मैं आपको 350 के भाव से लॉन्ग करा रहा हूँ, और करते करते देखिए 500 जो है हो चुका है. राइट. सो नेचुरल गैस में इस समय मैं ज़्यादा कोई व्यू नहीं रखना चाहता. Yes, it can still go till 515, but I'll be very cautious on natural gas. Or during the week, we will see. अगर natural gas if it starts to show some weakness, then I would like to short also. हालांकि short side में बहुत ही केयरफुल रहना है, इसलिए नहीं शॉर्ट करना है कि वो ज़्यादा बढ़ चुका है. ऐसी कोई थ्योरी नहीं लगानी है मार्केट में. ठीक है. बाकी गोल्ड और सिल्वर पे जो व्यू थे लास्ट वीक वही रहेंगे. गोल्ड पे it is still sometimes looking bearish, sometimes looking bullish. So मैं गोल्ड और सिल्वर में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ. सो प्रीटी मच दैट्स ऑल ऑन दी कमोडिटीज मार्केट. अब बात करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम. तो दोनों ही अपने बाइंग स्तर पे आ चुके हैं. मैंने लास्ट वीक आपको एडवाइस किया था कि 44,000 पे बाई करो, 42,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे. सो बिटकॉइन आई थिंक नाउ it has defended this 42,000 level, and any up move should trigger on the bitcoin से बेहतर है इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया है. इथेरियम के ऊपर मैं ज्यादा बुलिश था, आपको बताया भी था कि इथेरियम को बाय करना अगर दोनों में से कोई एक करना चाहते हो. सो इथेरियम वाज एडवाइज टू बाय नियर 3100. सो एनी डिप दैट कम्स ऑन इथेरियम, इट्स अ फैंटास्टिक बाय. 2900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट होगा 4000 का लेवल. सो इट विल बी अ वेरी ह्यूज रैली. सो दिस इज अ buying zone, and target is almost 4000 level, and that's the view on ethereum. Okay, so that's all on the other asset classes. Now let us have a look at nifty and bank nifty. So nifty और बैंक निफ्टी इन दोनों ने फ्राइडे के दिन जो है एक अच्छी कमबैक की है. स्पेशली निफ्टी हैज स्टेज्ड अ वेरी नाइस रैली. सो इन द ग्रुप I messaged the long trade when I spotted this falling wedge pattern. And if you remember, हमने डिस्कस किया था कि 17,690 जो है इट्स our mob level for Friday, and this has worked beautifully. If you see in the morning, because of RBI policy, we could not cross that 17,690 level convincingly, but it was not breaking down also, right? So this was a very good setup. In fact, यहाँ पे इसको ऑप्शन के थ्रू हमने प्ले किया था क्योंकि आरबीआई पॉलिसी था, so limited risk लेना था. And second half of the day, if you see after 12 o'clock, there was a very nice clean breakout for almost 150 points. So I think जितने ग्रुप मेंबर्स हैं इनको यहाँ पे सफलता मिली, और बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्वीट ट्रेड जो है सबको मिला. और जो है मैं समझता हूँ जिसने भी इस ट्रेड को लिया होगा उसने पैसा डेफिनेटली कमाया होगा. ठीक है. नाउ हैविंग सेड दिस, लेट अस सी कि अब पोजीशन क्या है निफ्टी की. सो निफ्टी देखो, पहले वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे कि वीकली चार्ट में अभी क्या सिचुएशन है. सो दिस चार्ट विल लुक वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज सो मेनी लाइंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट लेट मी जस्ट क्लियर थिंग्स आउट. सो वेयर हैज निफ्टी टेकन रेजिस्टेंस? निफ्टी हैज टेकन रेजिस्टेंस एट द ऑब्वियस ट्रेंड लाइन. और अगर आपको याद होगा तो हमने जो थर्सडे के दिन जो डिस्कस किया था, तो एक बात मैंने आपको बताई थी. लेट मी जस्ट जूम इन. तो इफ यू रिमेंबर ऑन थर्सडे वी हैड डिस्कस्ड one thing very very clearly, that this weekly candle was looking like a bearish pin bar, and if the bulls are in control they would like to create a bounce from this candle, right? And that same thing has happened. That anticipation has worked. Bulls created a bounce and they nullified the bearish pin bar effect, thereby making a sort of a useless candle. I would say this candle has no meaning whatsoever. So ये देखो ब्यूटी है प्राइस एक्शन का. लाइक वंस you are experienced enough, then in most of the cases you can anticipate what's most likely to happen. Now
with this as a configuration on the chart, मार्केट अभी क्लूलेस है. ठीक है, मार्केट में कोई क्लियर कट पोजीशनिंग नहीं है बिग बॉयज की, और मार्केट अभी क्लूलेस है. तो इसके हिसाब से इन दिस वीक आई थिंक मार्केट शुड मेक अ इनसाइड बार एंड देन इट शुड क्लोज, एंड ऑन नेक्स्ट मंडे इट विल बी अ मेजर मेजर मूव. ठीक है, सो मुझे लगता है कि मोस्टली इसी रेंज में रहेगा ये बाजार. तो आई वुड लाइक टू गो विद द सेम अर्लियर व्यू. आई वुड लाइक टू गो with a little bold view that the mob level for this week, I think I would keep the Friday's bottom, which is say 17,600. जब तक ये protected है, I think market is still bullish. I don't think market in this week, because of the truncated week, I don't think it is going to cross or it is going to do anything majorly. I think it is just going to rotate, gyrate in this range, and maybe make a inside bar like this and just close the week. And next week, whichever side we open, that side we should see the trending move. Okay, so mob level will be your 17,600, the lower portion, and the first target will be 17,920, and second target it could be 18,150 level. That's it. Okay, or maybe 18,200. Now suppose if market takes a ugly turn, if we are uh, trading below 17,600, then market can definitely become bearish for 17,350. That should be first target. Remember कि last time हमने यहीं से breakout create किया था. So 17,350 पहला target होगा, और उसके बाद 17,120 ये दूसरा target होगा. I don't think market is going to go beyond this and beyond this. Most noticeably, I think market is going to remain in this itself. Maybe यहाँ पे ये थोड़ा सा हो सकता है 50-75 पॉइंट नीचे चल जाए, बट ओवरऑल आई थिंक दिस विल बी डिफेंडेड. सो दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी. इट्स अ वेरी टेक्निकल व्यू. मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा ट्रेड करना इंडेक्स को इस वीक में. ओके, सो यू हैव टू मैनेज दिस वीक एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक. अगर हम चार्ट्स की, इंट्राडे चार्ट्स की बात करें, तो निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो चुका है. एंड व्हेन यू हैव सच अ हाई प्रीमियम, ऑब्वियसली मार्केट को उतनी आसानी नहीं होती है ट्रैवल करने में. ठीक है, सो ओवरऑल आई थिंक इन दिस लेग अप विच स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, एनी डिप दैट कम्स इट्स अ बाय, एंड वी शुड सी एटलीस्ट 18,150, 18,080 सॉर्ट ऑफ लेवल्स. तो अगर कल के लिए मैं बात करूं स्पेसिफिकली निफ्टी फ्यूचर्स के टर्म्स में, मैं अब बात कर रहा हूं, ये लेवल्स जो हैं फ्यूचर्स के होंगे. So I think for tomorrow's session, you should look to buy this dip near 17,000. I think that level comes to 17,775 something. ठीक है, तो आई थिंक यू शुड बाय. फ्राइडे का बॉटम का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,650, थोड़ा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए. शुड बाय दिस एंड वी शुड फिल अप दिस गैप. ये हमारा पहला टारगेट होगा, जो कि है आई थिंक 18,000 लेवल. ठीक है, और पोजिशनली 18,150 ये इस तरीके से. सो आई फील वी विल गेट 1 2 3 1, एक मूव ऐसे मिलेगा, एंड प्रॉब्ली देन वी कैन अगेन करेक्ट टू नलीफाई एंड क्लोज द वीक. ठीक है, सो ये मेरा व्यू है. एक ट्रेड नीचे से ऊपर डेफिनेटली होने वाली है, और मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट भी मिले वेडनेसडे के दिन. सो ट्यूसडे की रात को हम उसको डिस्कस कर लेंगे. सो दैट्स ऑल on Nifty futures for tomorrow's session and the weekly. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज स्टिल रिलेटिवली बेटर. अभी कुछ कोटक बैंक पे न्यूज आई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई थिंक दे आर यूजलेस न्यूज, बट बैंक निफ्टी इज स्टिल बेटर. बट बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, बैंक निफ्टी में जो मैक्रो जो थोड़े अगली टर्न हो रहे हैं, दैट कैन एक्चुअली बिकम बैड. ठीक है, तो यील्ड्स वगैरह हैं, यूएसडी आईएनआर हैं, अगर क्रूड ऑयल भी वापस भागने लगा, सो दीज थिंग्स आर going to create these things are going to create problem for the bank nifty. Now another aspect is that the RBI, it is not raising rates. That is something which is, I think, little concerning to me personally, because I think RBI can आरबीआई विल शो लैगिंग इफेक्ट. यानी आरबीआई को जो है इस समय रेट्स को रेज करना चाहिए था, और आरबीआई जो है नहीं कर रहा है. सो आई थिंक आरबीआई जो है बाद में ट्रबल में फंस सकता है. वो अपने चक्कर में जो है ट्रैप हो जाएगा आरबीआई. सो आरबीआई को कुछ यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंटरवेंशन वगैरह कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए. नाउ बैंक निफ्टी वीकली कैंडल इज अगेन लाइक यूजलेस कैंडल. इसका कोई मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ.
बट इस वीक में मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी एक नोटिसेबल प्राइस एक्शन बनाएगा जिसका इम्पैक्ट अगले वीक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस वीक का जो 3 दिन का जो एक्टिविटी है ये एक्चुअली में हमें संकेत देगा उसके बाद वाले वीक के लिए एंड हाउ द अप्रैल सीरीज विल एक्चुअली एंड। Now let us see the chart of Bank Nifty daily. And here, if you remember on Thursday, I had told you guys कि Bank Nifty में buy करना चाहिए अपने को, and this is the support, and we should bounce back again till these levels. So Bank Nifty में मेरा same यही व्यू होगा दोस्तों कि मैं बुलिश साइड में जाना चाहूँगा, कंजर्वेटिवली बुलिश साइड में जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ट्रिप यहाँ से हमें 38,500 तक मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा दैट आई डोंट नो, बिकॉज इफ हियर वी resist, then there can be one more correction till here. Okay, so it can be like A B C इस तरीके से। okay, तो एक अप ट्रेंड भी मिलेगा, एक शॉर्ट ट्रेंड भी मिलेगा। तो आई थिंक इस वीक में अगर आप प्रॉपर इंडेक्स ट्रेड करोगे, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट गुड प्रॉफिट्स इन जस्ट 3 days टाइम। सो बैंक निफ्टी पे लेवल्स क्या हो जाएंगे, सी मॉब लेवल जो होगा बैंक निफ्टी स्पॉट पे मेक और ब्रेक लेवल, आई थिंक दैट विल बी 37,450। So I think these levels are going to be my make or break level. Till we are sustaining these levels, my first target will be on the higher side, which is say 38,100 level and 38,600 on the higher side. Okay, so two targets will be there, 1 and 2 on the higher side. Upon there, we will see for any sign of weakness. Once we get some bearishness, we will short again and we will play for the lower targets just under 37,000. तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि इस वीक में हमें दोनों चाल मिल सकती है, पहले नीचे से ऊपर एंड देन ऊपर से नीचे। ओके, सो मेंटली एकदम ऑब्जेक्टिव रहो, क्योंकि इस वीक में कोई ट्रेंडिंग काम नहीं होना है। 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन का सेशन है, तो कोई ट्रेंडिंग काम नहीं होना। इट जस्ट लाइक टू साइड्स मूव की एक्सपेक्टेशन है। नाउ सपोज अगर हम गलत होते हैं और मार्केट बेरिश होता है, market it starts to fall down, then I think market will definitely test the 21-day moving average, which is placed near the 36,700 level. Okay, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। ये उसी केस में होगा जब कुछ मैक्रोज में प्रॉब्लम हो, यानी यील्ड्स और शूट करें, क्रूड ऑयल भी साथ में भागने लगे, यूएसडी INR 77 को टच कर ले, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो आई थिंक ये फिर ऊपर नहीं जाएगा, ये पहले नीचे आएगा एंड प्रॉब्ली इट वुड हैव डन दिस ABC करेक्शन। ओके, इसकी चांस मुझे थोड़ी कम लगती है फिलहाल के लिए। फिलहाल आई फील इट इज गोइंग हियर एंड प्रॉब्ली देन we are going to decline like this. So this would be like A B C इस तरीके से। ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रंट। कल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी मैं समझता हूँ बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, जो वीकली व्यू है उसके साथ हमें अलाइन होना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, सो प्रीटी मच दैट्स ऑल आई हैव ऑन इंडेक्स, ऑन कमोडिटीज, ऑन क्रिप्टोज एंड फॉरेक्स। अब दोस्तों अगर कोई क्वेरी है तो हम स्टॉक क्वेरीज ले सकते हैं थोड़े बहुत। एक और बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, हालांकि सबको पता ही है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है ये नेक्स्ट वीकेंड है, अप्रैल 17 और 16 को। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर लें, कल और परसों मैक्सिमम, डू नॉट डिले, बिकॉज द सूनर यू ज्वाइन यू विल बी इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू माइट बेनिफिट फ्रॉम दैट टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में लास्ट वीक में आईटी पे बेरिश था, तो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स जो है नीचे गिरे हैं। फार्मा न्यूट्रल था, मेटल्स में हम बुलिश थे तो मेटल्स ऊपर है, और सबसे इम्पोर्टेंटली द पीएसयू बैंक इंडेक्स विच वाज वेरी बुलिश सिंस लास्ट 2 वीक्स, एंड पीएसयू बैंक्स जो है बहुत अच्छे से चले हैं। पहला जो स्टॉक क्वेरी है मेरे सामने वो है SRT, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। सो जो लास्ट वीक बताया था मैंने वही व्यू है कि it will come near this 1250 1260, and over there you should watch. What you can also do is, suppose over there it reaches with a very nice strong candle, तो डायरेक्ट मत बुक करो, उस कैंडल के नीचे का ट्रेलिंग रखो, because the recent volume they might be very strong and they might push prices little higher. So if the higher prices has to come, it will go in a very very step by step manner. ओके, वन टाइम फ्रेमिंग करके जाएगा। पीडीलाइट की एक बार बात करते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेरी। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस समय
एक शॉर्ट टर्म एक ट्रेड इसमें ये हो सकता है। जो इसका मेन ट्रेड है ये पहले मैं बता चुका हूँ, वो अभी नहीं आएगा, उसके लिए आपको एक महीना वेट करना होगा। शॉर्ट टर्म में इट इज एट अ रेजिस्टेंस, सो टिल इट डजंट क्रॉस, till it doesn't negate this Thursday's candle, it will be under little pressure. Okay, it can fall till 2440. Okay, and once we break above this, then it's a very nice breakout, and I think in that case it will definitely reach till at least 2650. नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट ट्रेड कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सो द सीमेंट स्टॉक्स दे हैव बाउंस्ड nicely recently, एंड अंबुजा सीमेंट पर्टिकुलरली 350 के लेवल पे मैं समझता हूँ कि इस रेजिस्टेंस फेस करेगा, एंड मैक्स टू मैक्स 360, बिकॉज देयर इज अ पेंडिंग गैप एट 360। सो अंबुजा सीमेंट जो है अधिक से अधिक या तो इस गैप को यहाँ पे फिल करेगा, एंड लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर देयर, सो आई एम नॉट वेरी बुलिश, आई एम बुलिश टिल 360, नॉट बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट क्वेरी है एम टी ए आर, MTAR Technologies Limited. So this stock is doing nothing and it's a bearish counter. Let me tell you that very, very clearly. And I think stock should fall once near 1600 level. Only after that something can be said about this stock. The stock has not yet bottomed. So it will bottom out first. Next query है Vedanta. So Vedanta इज गोइंग वेरी नाइसली। जैसा मैंने लास्ट वीक आपको बताया है कि या तो आप बुकआउट कीजिए फॉर द टाइम बिंग और यू कैन ट्रेल। ओके, सो फ्रेश ट्रेड तो अभी वेदांता में नहीं है, फ्रेश ट्रेड के लिए हमें काफ़ी वेट करना होगा। वेदांता आई हैव बीन मेंटेनिंग लॉन्ग्स सिंस यू नो दीज लेवल्स ओवर हियर, एंड इसका मैंने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स दिया था 520 एंड ऑल दोज लेवल्स, एंड आई एम श्योर दोज लेवल्स विल कम। स्टिल इट इज 25% फार फ्रॉम दिस, बट वो लेवल्स आएंगे। वेदांता का अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इट इज़ वेरी बुलिश। लुक एट दिस, 550 का टारगेट आना निश्चित है। So this is the long-term pitchfork chart of Vedanta. So I am bullish because of the long-term bullishness in this chart. And recently, this monthly candles, they were like too good, very very nice. So इसका दोस्त 550 का टारगेट इंटैक्ट है। नेक्स्ट क्वेरी है IOC, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आईओसी जो है इस समय एनर्जी पैक, आईओसी देखो बुलिश है, आईओसी मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए 115 110 के स्टॉप लॉस से, और मैं समझता हूँ कि आईओसी जो है 145 से 150 का लेवल जो है डेफिनेटली करेगा। JSW Steel is the next query. Again, this is also highly bullish counter from my side, and it's just matter of time before it explodes on the higher side. Very very bullish counter, 850, 950, 1000 भी कर सकता है। These are very bullish counters. It's just a matter of time. So इनमें देखो प्ले कैसे करना है। अगर आपने नीचे के लेवल्स में बाई किए हैं तो आपके पास अच्छा कुशन हो जाता है, आप कैश में इन्वेस्ट करके आप होल्ड कर सकते हो, एक लंबे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। बट इफ यू आर प्लेइंग लाइक वेरी शॉर्ट टर्म इन नेचर, then things can go here and there also. So right now if you ask me any fresh trade, I think there is no fresh trade as such, no high quality setup, because we are already at a resistance zone. So we are at the uh, a strong resistance zone, right? But still, if you want to try out, there is a trade, and that trade is buy at 737, keep a stop loss of 710, एंड टारगेट विल बी 820। ये एक ट्रेड है, ठीक है, जो कि थोड़ा रिस्की है, बट यस दिस इज अ ट्रेड, एंड a very good trade will be when either it gives a breakout or it gives a pullback towards a 680 sort of a level. उसके बीच में और कुछ नहीं है। Overall, if you are holding this on the long side, it's a very good contender, and you see this is the long term monthly pitchfork, and look at this huge scope till 900, huge scope, now many people message me that they want to learn pitchfork and all, but let me just tell you guys, I don't teach these things directly. Okay,
only if you have been my student, you have been in constant touch with me, then I select students for mentoring. And those selected students, in couple of years I conduct one mentoring program, and only those guys are allowed to learn the pitchfork and all these things. Because first you need to be very good in terms of your price action and the overall understanding of market. It's only then that you can understand how to use this sort of technical analysis. नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है एच सी एल टेक पे। तो एच सी एल टेक पे किसी ने शॉर्ट ट्रेड लिया है एच सी एल टेक पे, करेक्ट। सो एच सी एल टेक देखो, इट्स इन नो मैंस लैंड, और इसमें कोई ऐसा ट्रेड नहीं है मेरे ख्याल से। बट अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1200 रुपए का, 1210 का, दैट्स इट। एंड if you see 1120 coming, then you should exit this trade. So usually we don't trade setups like this. You trade either the supports or you trade either the resistances, nothing in between, because the odds are like 50-50. Okay, so this is one trade book here, and then we will see for a long also. ठीक है, सो ये आपकी क्वेरी हो गई। कांट सी सुपर चैट, ये सुपर चैट इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नया चैनल है, तो यूट्यूब के कुछ फालतू से रूल्स होते हैं। सुपर चैट यू कैन होल्ड, एंड इन फ्यूचर कभी भी हम कर लेंगे आपस में सुपर चैट, एक एक पैक लगा लेंगे, सुपर चैट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेरी है बिग बुल का कि योर व्यू ऑन सीमेंट सेक्टर फॉर स्विंग ट्रेड। कोई स्विंग ट्रेड नहीं है भैया, स्विंग ट्रेड सीमेंट में खत्म होने की कगार पे है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीमेंट्स में मैं बहुत पहले बेरिश हो गया था, अगर आपको याद होगा ना। तो सीमेंट में मैंने आपको चेतावनी, अल्ट्राटेक के सीमेंट में ही मैंने चेतावनी दे दी थी कि सीमेंट से बाहर निकल जाओ बॉस। और मुझे अच्छे से याद है कि बहुत लोग नहीं निकले थे ग्रासिम को देख के। सो एनीवेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल राइट नाउ देखो स्टॉक 568 जा सकता है, उससे ज्यादा तो मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। 570, 500, 565, दैट्स इट। सो nothing great on this stock right now. There's nothing great. Probably in future this stock will become great, ठीक है, अभी नहीं है। इन फ्यूचर जो है ना ये स्टॉक में आएगा एक अच्छा ट्रेड, 100% बहुत बढ़िया ट्रेड आएगा इस स्टॉक में। अगर आप थोड़ा इसको टाइम दोगे ना, एक साल का, तो एक ऐसा ट्रेंड इसमें आएगा जिसमें स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा, वेरी इजी रिटर्न्स देगा। प्राज इंडस्ट्रीज इज द नेक्स्ट क्वेरी। प्राज इंडस्ट्रीज, सो लास्ट वीक भी इसे हमने डिस्कस किया था। सेम व्यू है दैट होल्ड इट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स लाइक 500 के आसपास का, ठीक है। सो द एक्सपेक्टेशन इज वेरी सिंपल, एक्सपेक्टेशन इज दिस, एंड दैट इज वेयर द रेजिस्टेंसेस वगैरह कम। सो 500 के आसपास, 480 500 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। राइट नाउ इट विल गो इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है बारबेक्यू नेशन। ओके, सो बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, बारबेक्यू नेशन जो है, लेट अस सी, बहुत दिन हो गए चार्ट्स देखे। तो सी नंबर वन, ये इन सब स्टॉक्स पे मैं पहले ही मैं आउट हूँ, ठीक है। आपके पेटीएम, नाइका एंड ऑल दीज काउंटर, सो दीज स्टॉक्स दे आर फिट फॉर नथिंग। ये स्टॉक में एक ही चीज है कि आप 1000 रुपीज के स्टॉप लॉस से यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। प्रॉब्ली इफ लक फेवर्स इट कैन रैली टिल 1500 बिफोर फॉलिंग अगेन, सो दैट वुड बी 50% रिटर्न। सो अगर ये एक ट्रेड ट्राई करना है तो आजमा सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी और ये सब नहीं है, लॉजिक नहीं है, जस्ट रिस्क रिवॉर्ड कि 100 रुपए का रिस्क है, 1000 रुपए स्टॉप लॉस है, बट प्योर स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट ट्रेड कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेरी है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक आ चुके हैं वापस से जहां से यात्रा शुरू हुई थी। और एच डी एफ सी बैंक में जैसा लास्ट वीक मैंने कहा कि यहाँ बाइंग करने का ये एक अच्छा लेवल है 1485 के आसपास, और थोड़ा आने दो, समवेयर हियर आप थोड़ा पार्शियली बाय कर सकते हो। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एच डी एफ सी बैंक इज डोंट, नंबर वन, ध्यान से सुनना, डोंट होल्ड एच डी एफ सी बैंक। अब इसमें होल्डर नहीं बनना है, होल्डर नहीं बनना है। दूसरी बात, ये स्टॉक में गड़बड़ है, ठीक है, इतना मैं निश्चित कह सकता हूँ। क्या गड़बड़ है वो मुझे नहीं पता, बट
ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये बहुत ही लोचा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और इन्होंने यहाँ पे अपना माल जो है ना ऑफलोड कर दिया है। अब पब्लिक को ये टेक्निकल मूव ये वो करा कराएंगे और पब्लिक को फंसाएंगे। सो माय बेट विल बी, टू बी नंबर वन केयरफुल, टू डोंट इन्वेस्ट मच, डोंट एवरेज मच, ट्राई सम, you know place some bets here, book some profits here, that's it, be a smart guy। थोड़े बहुत शॉर्ट्स लगाएंगे इसमें और बाहर निकल जाएंगे, जब तक कि इसमें 1-2 महीने की और प्राइस एक्शन नहीं आती और न्यूज़ फ्लो नहीं आता और क्लैरिटी नहीं आता। क्योंकि इन्होंने ये चीज़ क्यों किया है, ये अभी भी बहुत ही सवालिया है। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं सुबह उठ के बोर्ड मीटिंग करके 2 मिनट में अनाउंस कर सकते हो ना। सो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, सो और जैसा उस दिन ग्रुप में भी मैंने लिखा था कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ 2-3 years बैक, जहाँ पे HDFC का ऐसा ही सडन न्यूज़ आया था एंड दैट हैपन टू बी अ टॉप इन द मार्केट, एंड FII न्यूज़ था कुछ तो। सो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है वापस से। नेक्स्ट क्वेरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज वी आर बुलिश सिंस 2200 लेवल, और ये 2600 तक आ चुका है और ये अभी और जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अभी बुलिश है। 2720 एंड 2800, दीज आर दी टारगेट्स ऑन रिलायंस। अब नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा केयरफुल रहना, ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट्स। ICICI बैंक, दोस्तों लाइक का बटन दब नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। लाइक का बटन जाम हो गया है तो थोड़ा दबाओ उसको, लाइक का बटन थोड़ा सा प्रेस कीजिए। ICICI बैंक जो है इट इज़ बुलिश। अभी लास्ट वीक इसमें मैंने बाय कॉल जो दिया है, तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड दिया था। 725 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 770 पहला टारगेट है। यदि 770 में अच्छी क्लोज दे रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है ना, तो थोड़ा एक और बार कैरी करना, रिस्क लेना, कैरी करना और सीधे 785-90 पे डंप कर देना इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग गैप है। सो इस मोमेंटम ड्रिवन में ना अपने को यहाँ तक मिल जाएगा 785-790 तक। फ्राइडे इनसाइड बार है, मंडे जो है थोड़ा सा पुश लगेगा तो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में आ जाएगा। ट्रेल टू कॉस्ट करके छोड़ देंगे, 785-790 पे निकाल लेंगे। ये छोटा वाला एक ट्रेड है। सी जो छोटे ट्रेड्स होते हैं ना, उसको एफएनओ में करो, एफएनओ में करना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट टाइप के हैं उनको कैश में करो। सो दिस वे यू कैन प्ले बोथ दी सेगमेंट्स डिफरेंटली एंड उसको आप मैनेज भी कर लोगे। इसमें गलतियां लोग ये करते हैं कि शॉर्ट टर्म वाले को ऐसे वैसे कर देते हैं, मिसमैच हो जाता है थोड़ा। टाटा स्टील इज द नेक्स्ट क्वेरी। Tata Steel. So Tata Steel awaiting that big breakout, not doing much. Still, it is trying its best to launch itself above these resistances. I think कामयाबी हासिल हो जाएगी और आपने घबराना नहीं है इसमें, और ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे स्केल अप कर लेगा एंड दैट्स ऑल आई कैन से। हाँ, अगर आप हैवी पोजीशंस हैं या कुछ ट्रेलिंग करना चाहते हो तो बिकॉज इट इज मेकिंग अ राइजिंग वेज पैटर्न which sometimes becomes bearish, so to just to safeguard yourself what you can do is आप इसे जो है थोड़ा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 1340 1330 1340 पे एक बार ट्रेल करिए कि अगर सपोज कोई बैड लक नहीं हुआ, इस टाइप का कुछ मूव होना है तो वी विल एग्जिट एट अ हायर कॉस्ट एंड देन वी कैन बाय बैक अगेन नियर द 1250 लेवल, पोस्ट विच इट इज लाइक श्योर शॉट टू गो इस तरीके से। सो ट्रेल करते हुए जाएंगे बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंसेस तो यहाँ पे काट चुका है ये, एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट कैन स्पाइक अप डायरेक्टली एंड हिट दी 1480 लेवल। ठीक है, सो ये व्यू है, इस तरीके से हम डील कर रहे हैं टाटा स्टील को। और आईटीसी फ्यूचर्स, तो आईटीसी में एक ही टारगेट है मेरा 280 एंड 320, और 272 तक ला चुका हूँ आईटीसी को। इफ यू गाइज रिमेंबर आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन अदर देन द प्रमोटर्स ऑफ आईटीसी टू टेल यू गाइज कि इसको स्ट्रांगली बाय करो 210 पे, 180 का स्टॉप लॉस और 280 और 320 का टारगेट होगा। बहुत पहले मैंने बता चुका हूँ, और ट्रेनिंग के दौरान इसकी मैंने एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस की थी राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसी टाइम हमने निकाला था। दूसरा जो स्टॉक हमने जो ट्रेनिंग में निकाला था वो था टाटा पावर, एंड इफ यू सी टाटा पावर टारगेट्स डन। टाटा पावर में भी जो है बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस हमने की थी। थोड़ा सा पिच फॉक का पावर उसमें लगा के मैंने बताया था कि कैसे हम नॉर्मल लोग, हम लोग जो है एब नॉर्मल एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको सही टेक्निकल्स आता है तो। सो दिस वाज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल्स की बात करते हैं। टाटा केमिकल्स जो है इट इज़ ऑलरेडी बुलिश। टाटा केमिकल्स में बहुत पहले से ही मैं ये टारगेट दे चुका हूँ 1020 का, आई थिंक वो हो चुका है। राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि अगर ये 960 अभी होल्ड कर रहा है तो इसमें 1060 का टारगेट जो है बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की बात करें तो स्टॉक ने अभी एक almost on the verge of new high hai, and stock has a good base at 745. So I think till this 740 zone is holding up, stock can do one more trip towards 800, which is where the trouble will come. So भारती में दो चीज़ों का ध्यान देना। नंबर वन, ऊपर ऊपर में दोस्त फंसना नहीं, ऊपर ऊपर में बाय मत करना। इफ यू हैव बॉट इट बिफोर then you can hold it till the 740 is not giving up. You can hold it for 800, book profits at 800, and then move aside from this stock for some time. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये स्टॉक एक अब अच्छे एक जोन में आ चुका है जहां पे ये स्टॉक क्या करेगा कि एक फ्रेश एक व्यू बनाएगा है रीएक्यूमुलेशन में। तो वो जब चीज हो जाएगा उसके बाद इसमें जो अगला जो ट्रेड आएगा ना फ्यूचर में, ठीक है, वो ट्रेड अगर लॉन्ग साइड में ही मिला मुझे तो लेट मी टेल यू कि वो लाइक 670-80 से ये भागेगा कम से कम 1000 के लिए। सो इट विल बी लाइक अ वेरी बिग ट्रेड, एंड आई एम नोन फॉर गिविंग दीज बिग ट्रेड्स। टाटा पावर, आईटीसी, एसआरएफ, एशियन पेंट्स, पीडी लाइट्स, हेवल्स, राइट। सो इसमें भी हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है CDSL। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए, तो क्वेरीज का सिलसिला भी चलते रहेगा। सो CDSL की बात करें तो CDSL में लास्ट वीक मैंने आपको समझाया था, तो एक ही चीज़ आपको करना है, 1285 को ट्रेल करो, होप फॉर द बेस्ट, लेट इट गो टिल 1850 1900 लेवल, ओवर देयर वी कैन बुक प्रॉफिट। अदर देन दिस नो नीड टू थिंक एनीथिंग अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है। अगर आपने बाई किया है तो 1285 का आपको स्टॉप लॉस, आपको ये येलो लाइन जो है ना, दिस इज योर स्टॉप लॉस, होल्ड इट विद योर स्टॉप लॉस, लेट इट रीच नियर 1900 लेवल, ओवर देयर द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस विल कम फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस। ठीक है, तो वहां पे निकल जाएंगे। बिरला सॉफ्ट, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीक। बिरला सॉफ्ट, सो यस, सो दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड, और इस पे मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि अगर आप लॉन्ग हैं तो आप 415 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो। ठीक है। और अगर वेट कर रहे हैं फ्रेश एंट्री के लिए तो इसे एक बार गिरने दो, तब हम देखेंगे। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अभी आपको ट्रेल कर देना चाहिए 450 रुपये पे, और अपसाइड टारगेट जो है इमीडिएटली 528 रुपया जो है ये इसका अपसाइड टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस, आई हैड वार्नड यू गाइस, रिमेंबर, ये मैंने उस दिन एक्सप्लेन करके समझाया था कि निकल जाओ इन्फोसिस में। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालिसिस दिस वाज। क्यों निकल जाओ? देखो सिंपल सी बात है, इन्फोसिस कंसोलिडेटेड फॉर सो मेनी डेज, राइट। एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ मिला, फुस, देन इट मेड अ वेज, then with a gap it gave a breakout and then couldn't sustain and it reversed। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको पता है कि इस प्राइस एक्शन का क्या मतलब, इट्स अ फेलियर, फेलियर है, और ऑब्वियसली हायर जोन का मामला है, सीधे निकल जाओ। करेक्ट। सो दैट सेम थिंग हैज हैपेंड। सो इन्फोसिस पे आई एम नॉट बुलिश, लेट इट करेक्ट, लेटर ऑन वी विल सी। आप किसी ट्रेड में फंसे हैं तो आप लिख सकते हैं, यू शुड राइट एलोबरेटिव क्वेरीज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई अप्रोप्रिएटली। अगर आप लोग सिर्फ नाम लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या आपकी पोजीशन है। मैरिको, सी मैरिको लिमिटेड की बात करें, FMCG रॉकिंग चल रहा है। ठीक है, और FMCG अभी भी बहुत बुलिश है, so I am bullish on FMCG. As far as this stock is concerned, I think for the time being it is going to rotate between 500 to 550, that's it। इस 50 पॉइंट में ये घूमेगा थोड़े दिनों तक, और उसके बाद इसका एक नया ट्रेंड शुरू होगा। ठीक है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये 550 के ऊपर ज्यादा सस्टेन करेगा। सो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बाय नियर 500 10-15 रुपीज के स्टॉप लॉस से 550 के पास लिक्विडेट करें, इस टाइप से हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, TCS की बात करते हैं। TCS जो है कल रिजल्ट है, मैं तो अर्निंग्स प्ले वगैरह कुछ नहीं करता, सो अर्निंग्स प्ले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लास्ट टाइम स्टॉक बुलिश था 3500 से,
एक 3900 के लिए मिड वे जाके कोलैप्स कर चुका है। अब इसमें देखो पैनिक लेवल क्या है, सिंपल सी बात है, पैनिक लेवल आपका है 3500, ठीक है। सो इफ यू गेट टीसीएस एट 3500, इसे कैश में बाय करके छोड़ दो, ठीक है। कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 3400, थोड़ा सा बफर रखना है यहाँ पे, और थोड़े दिन के लिए छोड़ दो इस स्टॉक को। इवन इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस, स्टिल होल्ड इट, थोड़ा छोड़ो इसको, गिव इट सम टाइम, दिस स्टॉक विल show you higher levels, okay। This stock is most likely to reach for one more new high in some time, ठीक है। सो ये इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ ये करेगा, तो इसीलिए बाय एट 3500, कीप स्टॉप लॉस से 3350 एंड होल्ड इट इन कैश फॉर some weeks. I think TCS should do 4120, just one more new high. Probably after that, it can start the downtrend, ठीक है। सो ये व्यू है इस स्टॉक में। क्यों मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ, हालांकि आईटी में आईटी सेक्टर पे मैं बुलिश नहीं हूँ, बट इस स्टॉक पे मैं क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि if you look at the long term chart, this is the weekly pitchfork chart, it is still in a upward trajectory, ठीक है। It is still in a upward trajectory. So what I feel is, if we get a dip at 35, we should buy, right? And next time if it starts to move up ना, तो ये बहुत ही शानदार तरीके से जाएगा, and probably it can go much much higher also before peaking out. अगर ये वाला ट्रेड फेल होगा मेरा, सपोज ये ट्रेड फेल हो गया, तो समझ जाओ कि टीसीएस का टॉप डन है, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, एंड देन इट इज इन अ सम वॉट हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑल्सो, एंड फिर ये डाउन ट्रेंड में जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। इसकी संभावना मुझे अभी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। So that's the view on TCS. दोस्तों, almost we are approaching the 1 hour time limit, so I will have to wind up the live session. I am trying my best to take as many queries as possible. बाटा इंडिया एक बार चेक कर लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट काउंटर है बाटा इंडिया 1800 1900 के लेवल पे एडवांस में रेकमेंड किया गया था कि बाटा इंडिया को जो है लैप अप करिए। लेट मी सी बाटा इंडिया, ओके। So Bata India last time moved up from good from like 1800 to 2000, but again there is a सेल ऑफ। सो स्टॉक में सेम व्यू है। कैश में देखो, ये कैश वाली काउंटर है, जो कैश में बोलता हूँ मैं, उसको रेगुलरली नहीं देखना चाहिए। सो इसको आप अगेन, आपको 1780 1750 मिलता है, सिंपली बाय एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम, सम वीक्स, ओके। दिस स्टॉक विल गो हायर, it's probably making the right shoulder of an inverse head and shoulder, and I think it is definitely going to hold these 1650 bottoms, and slowly it will कैच अप स्पीड ऑन द हायर साइड। इंडियन बैंक की तरफ चलते हैं, अगला क्वेरी है इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक, लेट मी सी, इंडियन बैंक आई थिंक इट इज गोइंग फॉर 195 200 लेवल, सो बुलिश है। पीएसयू बैंक जो बुलिश है, बट एक चीज ध्यान में रखना कि पीएसयू बैंक, अभी मैं 2 हफ्ते पहले से भी मैं बुलिश हूँ, एंड कपल ऑफ पीएसयू बैंक्स दे हैव रैलीड, बट नाउ लाइक इसके बाद मैं बुलिश नहीं रहूंगा पीएसयू बैंक पे। सो मैं समझता हूँ कि इंडियन बैंक जो है एक ट्रिप आपको दे देगा 200 195, बट ओवर देयर काइंडली ट्रेल और बुक और गेट द व्यूज अगेन, बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, because I think this is the last rally in the PSU banks. Next trade है, next again I'm saying next trade. Next query है मैजडॉग। ट्रेड बोल बोल के इतना आदत हो गया है कि दिन भर ट्रेड ट्रेड ट्रेड। मैजडॉग, सी मैजडॉग जो है आपका बुलिश काउंटर है डेफिनेटली, एंड सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काउंटर एक्चुअली। इसके कुछ 2-3 बातें हैं इस स्टॉक की। फिलहाल लेट अस जस्ट डिस्कस द चार्ट पर्सपेक्टिव ओनली। सो आई थिंक इस स्टॉक में ना, यू नीड टू बी केयरफुल हियर, विच इज ऑलमोस्ट एट 300 लेवल, ओके। And for once I would suggest, if you are getting good profit now, for once try to exit here. Now why I'm saying so is because if the stock doesn't sustain about the 300 level, this will become your head and shoulder pattern, right? This will become your head and shoulder pattern, and then again it can come back all the way like this, and it can be under trouble later on, right?
So and the data is also not much, so we don't have any historical backing. So that's why, try to book here, and then we will see what can be done later on after a few weeks. दैट्स माय व्यू. और सपोज हो सकता है डायरेक्टली भाग जाए मंडे के दिन. अगर डायरेक्टली भाग जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा, ये न्यू हाई जैसी बनाएगा, सो इट वुड हैव मेड अ न्यू स्विंग हाई दैट ऑटोमेटिकली कॉल्स फॉर अ बुकिंग, बिकॉज दैट वुड बी लाइक टू बैक वाइड रेंज कैंडल. अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो ये हो चुका है. अगला क्वेरी है ब्रिटानिया. कपल ऑफ क्वेरीज एंड देन वी विल वाइंड अप. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, और ट्रेनिंग में जिनको दिलचस्पी है आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं. ब्रिटानिया is bullish as of now. I think Britannia is headed towards 3500, and over there, just watch out. I think Britannia is very bullish. Britannia, after completing its a long bear market, if you see from almost 1 year, the stock was in a downtrend. Not 1 year, but like, if I ignore this one, then it is definitely more than 1 year. So I think the stock has made a very huge bottom. If you see the long term chart of Britannia, it rarely goes below the 233 weekly moving average, rarely. And I'm talking about long term, 10-year 20-year data. Even in COVID it did not sustain below this. So imagine, अगर कोविड में ये नहीं इसको तोड़ पाया, तो अभी क्या तोड़ेगा ये. अंडरस्टैंडिंग? सो ब्रिटानिया यू आर गेटिंग एट अ वेरी चीप प्राइस, at a very strong level. Any dip that comes in Britannia, it's a blind buy. 3150 के आसपास, 3200 जो भी गिरावट आए, अब उसको बाय करने का काम आपका है. और स्टॉप लॉस 3000 के नीचे एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, एंड सीधे न्यू हाई वगैरह पे बुकिंग जो है ना करेंगे इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए. सो 4000 के ऊपर. सो इनफैक्ट लास्ट टाइम आई वाज कीपिंग दिस 4400 एज अ टारगेट, बट देन the FMCG stocks, all the stocks, they started to reverse. So this was a nice start for that bull market, but then suddenly they started to reverse here, right? But nevertheless, this is a good case because, as you can see, look at this. We rarely we, 2004 से हम देख रहे 18 साल के डेटा में, we have rarely sustained below this 233 weekly moving, rarely. So if you go by this perspective, then 4500 4900 ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है इस स्टॉक पे. So if you see, this was one impulse, then a sideways. So 4900 ये तो मतलब लिटरली इट्स अ केक वॉक. जितना बड़ा ये स्विंग था ना, उतना तो ये मिनिमम यहाँ से निकालेगा, तो 5000 आपका कहीं नहीं गया है. समझ गया? तो जो लोग स्मार्ट लोग हैं, जो लोग कैश में साइड में पैसा एलोकेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. डोंट मिस इट. एंड दैट्स ऑल आई कैन से हियर. ठीक है, एक लास्ट क्वेरी हम लेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे. अदानी एंटरप्राइज की तरफ चलते हैं. किसी ने जो अदानी एंटरप्राइज को आई थिंक कुछ शॉर्ट कर दिया है. तो अदानी एंटरप्राइज भाई, ये सब स्टॉक शॉर्ट वाले नहीं हैं, इनमें फंस जाओगे बुरी तरीके से. आपको मैं बता चुका हूँ, दीज आर ऑल सुपर डुपर बुलिश काउंटर. अडानी की कुंडली को हल्के में मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सो आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर अडानी जो है ना, टेस्ला के बाद अगर अडानी का ही नंबर आएगा दुनिया में. आई मीन, हालांकि अपने हैं, बेजोस भी हैं, बट अडानी कुछ भी कर सकता है. सो ये चीज़ है. सो अगर आपने शॉर्ट किया है तो कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल हाई, दैट्स इट. अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर ये यहाँ पे ना 2-4 दिन कुछ नहीं हुआ, लाइक साइडवेज, तो इसका ब्रेकआउट वापस से बाय करेंगे. ओके, सो दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव ट्रेड. एस बी आई वी आर बुलिश, एंड 440 से लेके 550 570 का अपना टारगेट इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा. सो एस बी आई पे वी आर बुलिश. एसबीआई में कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन अगर आता है, सपोज बैंक निफ्टी गिरता है और एसबीआई हमें नीचे के लेवल्स पे 490 480 मिलता है, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए. ठीक है, बीपीसीएल की बात कर लेते हैं. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल जो है, इस समय जैसा मैंने लास्ट वीक बताया था कि 400 तक आना चाहिए, आएगा, 400 तक आ जाएगा. डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज पे अपडेट लास्ट वीक, जिस दिन मैंने बोला उसके अगले दिन इसने शूट करना जो है शुरू कर दिया था, एंड सेम डे नेक्स्ट डे ही टारगेट हो गया. यही टारगेट दिया था मैंने, 4685 4700, एंड अगेन इट हैज कम डाउन. सो ये टारगेट था, टारगेट मेरा हो गया. अब रही बात कि अगले राउंड में क्या करेगा, तो इट इज़ वेरी डाइसी. ओके, सो राइट नाउ आई थिंक इट शुड टेक सपोर्ट. थोड़ा सा
4400 पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए. एंड इफ नेक्स्ट टाइम वी क्रॉस दी 4700 लेवल, अगर ये नेक्स्ट टाइम ऐसे ऊपर आता है, then I think it will definitely go till 5200 level. So keep an eye on this stock. MCX, ठीक है, MCX ये जो स्टॉक है बीच में 6 महीने पहले बहुत ही बुलिश हुआ था. एंड लुक एट दिस, एंड देन इट केम हियर एंड देन स्टॉक बिकेम बेरिश. सो इट इज स्टिल बेरिश एज ऑफ नाउ, एंड वन काउंटर बैक मूव टिल 1550 शुड कम. दैट्स इट. उससे ज्यादा इस स्टॉक में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. कोलगेट पामोलिव इज द नेक्स्ट क्वेरी. अगेन एफएमसीजी बैक है, सो बुलिश माहौल है एफएमसीजी में. एंड स्टॉक हैज फाइनली आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम नेगेटेड ऑल दी नेगेटिविटी. ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, जो लॉस्ट ट्रेंड लाइन था उसको इसने रीगेन किया है. सो आई लाइक दिस स्ट्रक्चर. अब ये स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया है. तो इस स्टॉक में कोई भी करेक्शन आता है अप टिल 1500 लेवल्स, यू शुड बाय. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 1400 लेवल्स. ओके. एंड इस स्टॉक में हम टारगेट लेके चलेंगे 1740 के आसपास. ये हमारा जो है टारगेट होगा. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मिड पॉइंट, ये हमारा टारगेट होगा 1750 1740. तो 1500 के आसपास आपको दिखाई दे, 1530 पे भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड 200-250 पॉइंट्स तो डेफिनेटली इस स्टॉक में मिलना चाहिए. ठीक है, सो ये एक एडवाइस है, ये एक ट्रेड है इस स्टॉक पे. एंड आई थिंक दैट्स ऑल. आई हैव टेकन मैनी स्टॉक्स. सो लेट अस वाइंड अप टुडे सेशन गाइज. चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें. चैनल को सपोर्ट कीजिए, because we don't earn anything for YouTube. It's a free channel, everything is free. So that's something which we need. And lastly, if anybody is interested to join the training, to be a part of the Telegram group, आप WhatsApp करके join कर सकते हैं. Thank you so much. Take care. Wish you all the best. Good night. Jai Mata Di.